Hello, students. Good morning to all of you, and a very happy new year. My name is Shabana. I'm your English teacher from Crystal School. Today, we are going to start a new lesson, new chapter. Name is Maggie's First Reader. Chapter number 9. So, what is there in this chapter? In this chapter, there is a character named Maggie. She is a very perfect housewife, but suddenly something happened in her life and she changed herself totally. There is Maggie's husband, and another is Maggie's son, and there is another character, a priest, a father, a rector. Okay, so there are total 4 to 5 characters in this story. So this story is very interesting, gives us a very good message. So let us begin. Chapter number 9, Maggie's First Reader. Please open page number 102. So let us begin. Maggie's First Reader. So Maggie is the name of the main character. First means first time and reader means to read something. So this story is based on books and reading. Okay. So this is the warm-up exercise. You just read it and do it by yourself, as you have to write it according to your imagination. Alright. So do it by yourself. We'll start this lesson from here. Okay. The best housewife in Calgro was Maggie Gregory. Always a right good smell of pie or stew around the door at dinner time, and 3 days a week at tea time. You got the old-fashioned whiff of house-baked bread as you went by. यहाँ पे कैलग्रो एक प्लेस का नाम है जहाँ पे ये रहते हैं, एंड मैगी ग्रेगरी, इट इज़ हर फुल नेम ऑफ द फीमेल इन दिस करेक्टर. सो मैगी ग्रेगरी एक बहुत ही अच्छी वाइफ थी, हाउसवाइफ थी, जो रहते थे कैलग्रो में. उनके वहाँ पे हमेशा बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती रहती थी पाइस एंड स्ट्यू की. पाइस यू नो द काइंड ऑफ केक जिसे स्टफ़ किया जाता है और केक बनाए जाते हैं, एंड स्ट्यू मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ सूप. सो जब भी उसके दरवाजे के सामने से कोई निकलते थे तो बहुत ही सुंदर सी, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव स्मेल आती थी डिनर टाइम पर. एंड 3 days a week at tea time, और 3 days a week टी टाइम के वक्त भी बहुत ही अच्छी स्मेल आती थी उनके घर के बाहर से निकलते थे जो लोग उनको. यू गॉट द ओल्ड फैशन विफ ऑफ होम बेक्ड ब्रेड एज यू वेंट बाय. और आपको इतनी अच्छी स्मेल आती थी. विफ मीन्स अ काइंड ऑफ स्मेल जो दूर से ही आती है, खुशबू. तो इतनी अच्छी खुशबू आती थी होम बेक्ड ब्रेड की. इतनी अच्छी वो बनाते थे रोटी वगैरह, जो ब्रेड्स बनाते थे घर पे ही बेक करके. सो वी कैन सी हियर मैगी ग्रेगरी इज़ अ वेरी गुड वीमेन, अ गुड हाउसवाइफ, एंड शी कुक्स वेरी गुड फूड. ऑलराइट. I would not let bought loft cross my doorstep, Maggie used to declare. As for the Gregory family eating fish and chips or a factory pie, Maggie would not hear of it. मैगी हमेशा यही प्रेफर करती थी कि वो जो भी खाना बनाए वो घर से ही बनाए. लोग बाहर से जो फूड लेके आते थे लाइक फिश, चिप्स, फैक्ट्री पाई, लेकिन ग्रेगरी फैमिली में हमेशा वो सारी चीज़ें घर पे ही बनती थी. वो बाहर से लाना प्रेफर नहीं करती थी. ओके. Now come on next page. There were 5 living and well-fed youngsters at school, and Harry, the husband, was a nice, easy-going chap, a good blower in a nearby factory. Yet flock going off to work before 7 in the morning would see Gregory's doorstep glistering alone in the row. So Harry उनके हस्बैंड थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे,
चैप मीन्स अ गुड पर्सन, और वो क्या काम करते थे, ग्लास ब्लोअर का काम करते थे, लाइक यू नो एक फैक्ट्री, ग्लास की फैक्ट्री जहाँ पे ग्लासेस को शेप दिया जाता है और डिफरेंट काइंड ऑफ शेप में कन्वर्ट किया जाता है, वो इस तरह से काम करते थे। येट फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स पीपल, लोग, लोग जब उनके घर के सामने से निकलते थे मॉर्निंग में, जब 7 o'clock पर हैरी वहाँ से चले जाते थे उनके फैक्ट्री पर, तो लोग क्या देखते थे कि ग्रेगरी का जो घर था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से एकदम चमक रहा होता था, ग्लिस्टरिंग मीन्स शाइन करता था, और उनका ही घर एक रो में इतना सुंदर था जो सबसे ज़्यादा शाइन करता था और सबसे ज़्यादा साफ सुथरा रहता था। इट्स स्ट्रेंज टू नो मिसेस बेन्स would say of Maggie behind her back, I never did see a family so fussy and hardworking. Funny thing, she goes off to mass every Sunday with the prayer book in her hand, but she can't read a word. So यहाँ पे उनकी जो नेबर हैं मिसेस बेन्स, वो क्या करती थी, वो मैगी से बहुत ज़्यादा थोड़ा सा उसे जेलस फील होता था। सो बिहाइंड हर बैक मतलब उनकी पीठ पीछे वो उनके बारे में बात करती थी कि मैंने ऐसी फंसी, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे वो क्या बहुत ज़्यादा मैगी ध्यान देते थे, तो वो ऐसा बोलते थे कि मैंने ऐसी फंसी, लाइक छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने वाले और हार्ड वर्किंग काम करने वाले ऐसी फैमिली मैंने आज तक नहीं देखी। फ़नी थिंग्स राइट, कि मतलब ये बहुत फ़नी चीज़ है। और जानने की बात ये है कि शी गोज़ ऑफ मास, मास मीन्स प्रेयर, जो क्रिश्चियन जो रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो एवरी संडे प्रेयर के लिए चर्च में जाते हैं, तो वो उस प्रेयर को क्या बोलते हैं, मास। ओके, तो वो मास में हर संडे को जाती थी अपने हाथ में एक बुक लेकर, लेकिन बात यह है कि मैगी को एक वर्ड भी रीड करना नहीं आता था। तो इस तरह की बातें उनकी नेबर उनके बारे में करती थी। लेट्स सी, the new rector, Father O'Flaherty, discovered this and he was shocked. A fine, respectable wife and mother like yourself, ma'am, he said, that can't understand the written word. Tell me, why is that? Now in the church, rector means जो पुजारी रहते हैं ना चर्च के, वो सो एक नए वहाँ पे फादर आए हुए थे उस चर्च में, जिस चर्च में मैगी हमेशा जाते थे मास के लिए, प्रेयर के लिए। उनका नाम था ओफ्लाहर्टी। ओके, ओफ्लाहर्टी ये एक आयरिश नेम है, आयरिश सरनेम है, ऑलराइट। तो उन्हें पता चला कि मैगी एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल वुमेन है उस टाउन में, लेकिन शी डजंट नो हाउ टू रीड। ओके, तो उनको पढ़ना और लिखना नहीं आता था, तो उन्होंने मैगी से पूछा कि वाई इज़ दैट, ऐसा क्यों है कि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, आप इतने रिस्पेक्टफुल और इतनी वेल बिहेव्ड वेल मैनर्ड वुमेन है फिर भी। सो आई वर ओनली 8, said Maggie, when me ma died. I hadn't been much to school at the time, and being the only girl, I had to get stuck into the housework. सो मैगी कहती है कि मैं सिर्फ 8 साल की थी जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। मी माँ मीन्स मदर। सो वो बताती है कि जब मैं 8 साल की थी तभी मेरी मदर की डेथ हो गई थी, और इसी वजह से मैं उस वक्त स्कूल नहीं जा पाई, और बीइंग ओनली गर्ल, मैं सिर्फ घर में एक ही गर्ल थी, इस वजह से मैं घर के कामों में ही गेट स्टक मीन्स फंस गई, घर के कामों में ही मैं बहुत ज़्यादा उलझ गई। बट दिस विल never do, women, said the priest crossly. You must learn to read. तो फादर क्या कहते हैं, प्रीस्ट क्या कहते हैं, प्रीस्ट मीन्स दैट फादर ओनली। तो वो बोलते हैं कि ऐसा थोड़ी चलेगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, आपको सीखना तो पड़ेगा ही। जस्ट ही वॉज लीविंग, द 12-year-old son came in from school. तो जब वो चर्च से वहाँ से निकल ही रही थी, तब क्या होता है, उसी वक्त उनका एक 12-year-old का सन आता है। किनका, मैगी का सन आता है वहाँ पे, जिनका स्कूल ख़त्म होके जस्ट वो वहाँ पे पहुँचे ही थे। टिमोथी, सेड द प्रीस्ट, जस्ट द मैन आई नीड, विल यू टीच योर मदर टू रीड। तो प्रीस्ट कहते हैं, फादर कहते हैं टिमोथी से, टिमोथी कौन है, टिमोथी मैगी के छोटे सन हैं। तो फादर टिमोथी से कहते हैं कि आप
अपनी मदर को पढ़ा सकते हैं? आई विल ट्राई फादर। सो टिमोथी कहते हैं कि मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई? श्योर, दैट्स नॉट गुड एट ऑल। एनीवन कैन ट्राई। आई वॉन्ट यू टू मेक हर रीड। डू यू अंडरस्टैंड मी? तो फादर उनसे कहते हैं कि ट्राई तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मदर को पढ़ाएं। क्या आपको बात समझ आई? आई डू फादर। सो टिमोथी कहते हैं ओके फादर। देन let there be no mistake about it. Start her off with, Tom filled his can at the well. I will call this day fortnight by boy, and if your mother can't read by that, you will answer to me. Here is sixpence. Go and buy sweet for yourself, but remember, this day fortnight. तो अब फादर क्या करते हैं? फादर उनसे कहते हैं कि मैं आपको 15 डेज़ का टाइम देता हूँ। फोर्थ नाइट मीन्स 15 डेज़। तो वो कहते हैं कि आज से आप शुरू कीजिए अपनी मदर को पढ़ाना, और अगले 15 डेज़ के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी मदर को पढ़ना आया और आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट हर ऑफ मीन्स आपको शुरू कहाँ से करना है। टॉम फिल्ड हिज कैन एट द वेल। आपको सबसे पहले अपनी मदर को ये सिखाना है। सो फादर उन्हें 6 पेंसियल इज़ अ काइंड ऑफ करेंसी। जैसे हमारे यहाँ पे रुपीज़ होते हैं, वैसे पेंसियल आयरलैंड की करेंसी है। तो वो उन्हें 6 पेंसिल्स देते हैं और कहते हैं कि जाओ और आप कुछ मिठाई खा लो, लेकिन याद रखना आपके पास सिर्फ 15 डेज है अपनी मदर को सिखाने के लिए। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। Timothy coaxed, bullied and cajoled his mother for the next fortnight, but she had no time to sit and rest, and he would follow her about the house, persuading her to grasp word like cat and dog. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, जैसे ये टिमोथी है और उनकी मदर है। टिमोथी बहुत ट्राई करते थे कि अपनी मदर को वो पढ़ा सके, ठीक है। क्रॉक्स्ड मीन्स बहुत प्यार और बहुत अच्छे तरीके से, पेशेंस के साथ। सो वो अपने मदर को ट्राई करते थे कि वो प्यार से बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा समझाए उनको कि मम्मी पढ़ लीजिए। देन बुलीड, थोड़ा गुस्सा करके भी अपनी मदर को बोलते थे कि मम्मी पढ़ लीजिए ना। फॉर 15 डेज तक वो यही ट्राई करते रहे, बट उनकी मदर ना बैठती थी ना पढ़ती थी, वो बस अपने कामों में ही लगी रहती थी। सो परस्यूडिंग मीन्स, और काफ़ी बार वो बहुत फोर्सफुली भी बोलते थे कि एटलीस्ट थोड़ा सा तो सीख ले, लाइक कैट एंड डॉग बोलना तो सीख ले। ग्रास्प मीन्स टू अंडरस्टैंड, कि थोड़ा सा दिमाग में एटलीस्ट कैट एंड डॉग जैसे वर्ड्स अपने दिमाग में डाल दे। द लैड कंटिन्यू टू ट्राई, फॉर ही वेंट इन फियर ऑफ फादर ओफ्लाहर्टी near midnight on the eve of the last day. He gave her the final lesson. Suddenly, clearly, without hesitation, she read out, Tom filled his can at the well. So, the lad means this boy. So, lad continued to try. तो टिमोथी ट्राई करते रहे कि अपनी मदर को सिखाते रहे, और उनको बहुत डर था। किनका डर था? फादर ओ फ्लाहर्टी का, कि अभी 15 डेज आने वाले हैं और अगर मैंने अपनी मदर को पढ़ना सिखाया नहीं तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर मी, और वो फादर गुस्सा हो जाएंगे और मुझे आंसर करना पड़ेगा। तो फाइनली सडनली क्या होता है कि उनकी मदर क्लियरली और विदाउट एनी हेजिटेशन मीन्स हिचकिचाए बिना उनकी मदर बोल देती है, रीड कर लेती है, टॉम फिल्ड हिज कैन एट द वेल। नाउ रीड इट बैकवर्ड से टिमोथी, एंड शी डिड। तो अब टिमोथी क्या कहते हैं कि मदर आप इसको उल्टा पढ़िए, और क्या होता है उनकी मदर उसे रिवर्स मोड में भी पढ़ लेते हैं। ओ चैम्पियन मैम, ही क्राइड, और टिमोथी वॉज वेरी हैप्पी। ओ चैम्पियन मैम मीन्स अपनी मदर को ही बोल रहे हैं वो कि यू आर अ चैम्पियन, मीन्स अब आपको पढ़ना आ गया है। बट देन ही लुक्ड एट हर विद wonderment, for strange light now shone in his mother's eye as round the kitchen she walked, looking at the shelves and reading aloud the usual words she had looked on in ignorance so many years.
तो अब उनकी मदर क्या करती है, अब उनकी मदर की आंखों में एक लाइक वंडरमेंट मीन्स सरप्राइज उनकी आंखों में देखने को मिलता है, और वो बहुत ही ज़्यादा लाइक एक स्ट्रेंज तरीके से बहुत खुशी के साथ और बहुत आंखों में चमक लेकर वो अपने किचन में चली जाती है, और यहाँ वहाँ जो शेल्फ्स होते हैं जहाँ पे सामान रखा होता है, तो वहाँ पे जो भी बुक्स वगैरह पढ़ी होती है या जो भी चीज़ें होती है वो उनको पढ़ने लगती है, जो आज तक वो इग्नोर करती थी। इग्नोरेंस मीन्स जिनका उन्हें कुछ अंदाज़ा ही नहीं था इतने सालों से। To make delicious coca, use twice as much sugar as coca, mix thoroughly while dry. Granulated sugar untouched by hand. So ये चीज़ थी, वो एक आई गेस किसी चीज़ के ऊपर लिखी थी कोका की रेसिपी के बारे में कि उसे कैसे बनाना है, और ये सारा वो आराम से पढ़ने लगी। ग्रैन्यूलेटेड मीन्स जो पाउडरी शुगर होती है ना, उसे कहते हैं। सो वो ये सारी चीज़ें आराम से पढ़ने लगी। हे मैम, कॉल टिमोथी अनइजीली, दैट आइल डू। तो टिमोथी कहते हैं कि बस मम्मी, उन्हें चिंता हो जाती है कि इतना काफ़ी है, बस आज के लिए इतना काफ़ी है। Unheedingly, she picked up the familiar prayer book from the dresser. She opened it and looked down at the words she had gazed on unknowingly every Sunday morning. And now she began to read slowly and carefully. A night in which heavenly things are united to those of earth, and things divine to those who which are human. So, यहाँ पर unheedingly means without any attention, वो एक बुक को उठाती है, प्रेयर बुक को, और उसे ओपन करके वो हर एक वर्ड पढ़ने लगती है, और गेज्ड ऑन मीन्स ध्यान से उसे रीड करने लगती है। वो बुक जो हर संडे को वो लेके जाती थी, उसी बुक को वो फिर से पढ़ना स्टार्ट करती है, स्लोली केयरफुली। और उसमें क्या लिखा होता है, अ नाइट इन विच हेविली थिंग्स आर यूनाइटेड टू दोज अर्थ एंड थिंग्स डिवाइन टू दोज विच आर ह्यूमन। सो इस तरीके के वर्ड्स जो बुक में लिखे होते हैं उसे पढ़ना वो शुरू कर देती है। ठीक है, From the night on the printed word hid Maggie's in fascination, where once she had cooked a delicious pudding without a thought, she now spent much time reading fondly the direction for use. Soon the home was littered with love and murdered magazines. तो अब क्या होता है कि मैगी ने क्योंकि अब पढ़ना शुरू कर दिया है, तो वो प्रिंटेड वर्ड को बहुत ध्यान से देखने लगी और वो बहुत फैसिनेट हो गई। फैसिनेशन मीन्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाना किसी की तरफ। सो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगी, वो हर एक चीज़ को पढ़ने लगी, और डिलीशियस पुडिंग वगैरह जो बनाते हैं कैसे हैं वो सब वो उसके बारे में सोचने लगी, और किस तरह से उस डायरेक्शन टू यूज़, कोई रेसिपी बनाते हैं ना तो वो पीछे काफ़ी बार दिया होता है कि आपको इस तरह से खाना बनाना है, तो उन सबको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने लगी, बुक्स पढ़ने लगी, मैगजीन्स पढ़ने लगी, और इस वजह से घर में पूरा सामान यहाँ वहाँ फैल गया। लिटर्ड मीन्स पूरा घर गंदा हो गया, सब जगह पे पेपर्स, मैगजीन, सब कुछ फैला हुआ था। यू विल हैव टू जॉइन द लाइब्रेरी, सेड हैरी हर हस्बैंड। तो हैरी क्या कहते हैं, हैरी उनके हस्बैंड हैं, वो कहते हैं कि आपको मैगी आपको एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ई बट दैम्स ऑल स्टिफ बेक्ड बुक, शी सेड, आई विल नेवर डेयर टू रीड वन ऑफ दैम। सो अब मैगी कहती है कि ओ स्टिफ्ड बैग्ड मीन्स मतलब जो बुक बड़ी बड़ी मोटी गत्तों वाली बुक होती है ना, जैसे कि आप यहाँ पे शेल्फ में देख रहे हैं वैसी सारी बुक्स, तो बोलती है कि इतनी बड़ी बड़ी बुक्स रहती है, वो तो इतनी मोटी मोटी रहती है, मैं कभी इतनी हिम्मत नहीं कर पाऊंगी कि मैं उसमें से एक भी पढ़ सकूँ। डेयर मीन्स हिम्मत करना। सो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वो सारी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ सकूँ। गॉन विद द विंड वॉज द फर्स्ट बुक मैगी केम home with. She went right through it in 2 nights and 1 day. So Gone with the Wind, it is a very famous novel which is written by Margaret Mitchell. So वो क्या करती हैं कि वो एक बुक लेके आई अपने घर पे, इतनी मोटी सी अच्छा सा नॉवेल, और उन्होंने क्या किया कि सिर्फ 2 रात और 1 दिन में पूरा का पूरा नॉवेल पढ़ डाला। After the strange long pleasure of that first stiff baked book,
Maggie went sneaking off the public library every morning with a book hidden away in her shopping basket. She couldn't stop herself from reading ravenously into the night, and soon one book wasn't enough to rely on. तो अब क्या होता है कि जब उन्होंने एक नॉवेल फिनिश किया, गॉन विद द विंड, उसके बाद उन्हें बहुत एक अलग सा ही अनुभव महसूस हुआ. लॉन्ग प्लेजर मतलब बहुत ही लंबा और बहुत ही अलग तरीके का एक अच्छा सा कुछ उन्हें फील हुआ वो मोटी सी बुक पढ़कर. तो मैगी ने क्या किया कि स्नीक मीन्स सर्च करना. तो वो पब्लिक लाइब्रेरी में चली गई एक मॉर्निंग, अपनी बुक है वो अपने शॉपिंग बैग में छुपाकर. वी कैन सी हियर, सी यहाँ बुक छुपाकर वो पब्लिक लाइब्रेरी में गई और एक अच्छी सी बुक उन्होंने सिलेक्ट की और उसे अपनी बुक में डाल दिया. और उनको अब एक बुक काफ़ी नहीं थी, वो हर रात में एक बुक पढ़ना चाहती थी. और अब क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा रेविनसली मीन्स बहुत ज़्यादा भूख थी पढ़ाई की. जैसे हमें खाने की भूख होती है ना, पिज़्ज़ा बर्गर हम एक खाते हैं तो और खाने का मन करता है, वैसे ही मैगी को रीडिंग की हैबिट हो गई और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ने लगी और एक बुक उनको काफ़ी भी नहीं हो पाती थी. The home suffered once she fell under the spell of the printed page. Neither place nor time exist for Maggie Gregory. The meals were frequently burned or were up of the shop pies, tomato, breads and butter. When she did make a stew, she stopped as low as buying ready peeled potato brought to the door. अब क्या हुआ कि क्योंकि उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगने लगा, वो प्रिंटेड पेज को पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से अब समझने लगी. सो स्पेल ऑफ मीन्स कुछ मैजिक फील होने लगा उनको अपने अंदर पढ़ाई करके, ये नॉवेल्स रीड करके. तो क्या हुआ कि जो फ्रीक्वेंटली उनका खाना जलने लगा, क्योंकि पूरा टाइम तो उनका पढ़ने में ही जाता था, तो खाना जो मील्स थे, लंच डिनर एंड ब्रेकफास्ट वगैरह, वो उनको जला हुआ मिलने लगा. जो पाइस थे, टमाटो पोटैटो ब्रेड्स जो वो घर पे बनाते थे, जो उनको बाहर से लाना पसंद नहीं था, वो सारी चीज़ें अब वो बाहर से मंगवाने लगी. अब पूरा टाइम शी वॉज गिविंग इन टू हर रीडिंग. ओके, सो खाना बनाने की जो उनकी खुद की क्वालिटी थी वो भी डाउन होने लगी. हैंग इट वुमेन, हैरी वंस रोड, when are we going to see some good home baked bread again? I would like to know. तो अब कहते हैं हैरी उनके हस्बैंड, मैगी के हस्बैंड की हैंग ऑन, थोड़ा गुस्सा होकर कहते हैं कि सी, आप रोज़ ऐसा खाना खिलाते हैं तो अब हमें अच्छा खाना कब खाने को मिलेगा, घर पे बनी हुई ब्रेड हमें कब खाने को मिलेगी फिर से, बस मुझे इतना बता दीजिए. तो Man, don't lie bread alone, remarked Maggie, who was fast picking up handy rejoinder. So अब मैगी ने अपने हस्बैंड को आंसर देना शुरू किया कि अब सिर्फ ब्रेड पर आप पूरे निर्भर मत रहो, आप कुछ और भी खाइए. और ऐसा हैंडी रिजॉइंडर मीन्स बहुत ज़्यादा क्लेवर तरीके से उस मैगी ने अपने हस्बैंड को आंसर किया. Father O'Flaherty called in one dinner hour to find Maggie's dug into War and Peace. War and Peace is also a novel. तो एक दिन फादर ओफ्लाहर्टी उनके घर पे डिनर के लिए आते हैं. तो वो क्या देखते हैं कि मैगी एक डग मतलब बहुत ज़्यादा डूबी हुई है पढ़ाई में, मीन्स नॉवेल रीड करने में. वॉर एंड पीस एक नॉवेल है जो लिखा है नियो टॉल्स्टॉय ने. ठीक है, तो उसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा बिजी थी. सो फॉर टुडे वी आर फिनिशिंग टिल हियर. इन नेक्स्ट वीडियो we'll discuss the other part of this story. Okay, and this is a very interesting story. Hopefully we'll complete this tomorrow. All right, so this is all for today. Thank you and have a good day.